alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Let's embark this beautiful journey with a dua. May Allah help us throughout this journey. May He overcome our shortcomings and make this knowledge beneficial for all of us. Amen. A very warm welcome to all my dear sisters. I'm very happy to have you again. So let's hope for the best. May Allah help us throughout this journey. Amen. Now, our today's topic is not an ordinary topic. It has its own importance. We know for the competitive exams, for the government jobs, and when we are coming to our Olympiad, and for our day-to-day conversation, this topic plays a vital role in our lives. Okay, so we need to learn it. We can't take a chance that we'll learn it tomorrow or we know it already. It's very good that we know it already. Let's revise then in that case. So let's revise or let's test ourselves whether we are on the right track or not. Okay, so let's start this journey and let's know what is the topic of the talk today, and that is modal auxiliary verbs. They are very important. No talk, no sentence, can complete without this. I really feel so because in today's era, in today's world, we need everything to express ourselves. Okay. And when we are talking about modal auxiliary verbs, it really plays a very important role. Okay. And let's see Model what's that. auxiliary verbs. Most of us, when we are thinking about modal auxiliary verbs, we say can, could, will, shall. Such things only comes in our mind. Okay. But, we hardly know what is the what is the definition is all about. Okay. So today we are going to learn what is modal auxiliary verbs. Model, when we are talking about this topic, yeah, we should know it states the mood of the verb in the sentence. Okay. So, what kind of mood it is saying? Sometimes it is talking about the possibility, about the request, and about the ability of a person. Okay. So, you know, when we are saying about the mood, so, it is saying how the person is uttering, okay, how the person is expressing himself, okay, how the person is expressing himself. So, sometimes we are making requests, sometimes we are asking something, we are asking permission, and we are expressing our abilities, okay. So, different moods are there which we are showing to someone else and we are showing to others while talking, okay, and even while writing as well, okay. So, we need to remember where we are making the mistake, okay. If I'm saying that I'm using modal auxiliary verb, so at the same time, I should, you know, keep it in my mind that what kind of rules have to be applied here. Okay, when I'm talking about modal auxiliary verb, I cannot blindly use it. Okay, I should know the rules. I should know the proper usage of that specific topic. Then only I can proceed. So let's know what is a modal auxiliary verb and how we can use it, how we can state different moods of the uh, verb. Okay, how the person is working, how the person is doing his work, and how he's showing the ability, and how he's making the request, and how he's expressing the possibility. Let's see that.
Here are the contents which we are going to learn today, inshallah. So just have a look. Now we are on part one. If I'm talking about part one, and that is can and could. Before proceeding ahead, let us learn some important rules of modal auxiliary verbs. I always say to my students, I always make them understand through this word. And what's that? I used to call it, I call it as defective auxiliary verbs. And what do we mean by defective? If something, if there is a shortcoming or a loophole in that, so we call it a defective. Okay, we call it defective because there is something wrong with that. It is not in a normal condition. It is not perfectly all right. So when I'm talking about modal auxiliary verb, and if I'm saying that it is also known as defective auxiliary verb, so that means there is something wrong with this. There is some shortcomings with that. Okay. And let's see what is that. If I'm saying we can swim. Okay. If I'm saying we can swim, and if I say she can swim, here are two sentences, and only thing I change is the subject. In case of first sentence, I use the word, the subject, we. And in the second sentence, I use she as a subject. Now, as we know that we is plural and she is singular. So, no matter whether I use plural or I use singular, in both the cases, I have used the word can. Here you can see this, you can make out that I have used can in both the sentences. That means modal auxiliary verbs cannot discriminate between singular subject and plural subject. Okay. So when you are saying can, so you are not, you will not keep this in your mind that yes, I am going to use can only for the plurals, or I can use can for the singular. No, you cannot, this rule is not applied over here. We cannot apply this rule here. That's it. That is why we call it defective auxiliary verb, because it has a shortcoming. It cannot make out whether this is a singular or this is a plural. Okay. Now the second thing which we need to learn before going ahead, and that is, if I say give, okay, that is V1, and it is also called as present tense. Okay. Your present tense, this is your present tense, and which kind of present tense? This is in plural form. We use this in the plural form. If I say gave, that means this is V2, and this is past tense. Okay. Now, given, if I'm saying given, so that is our V3. And when I'm talking about V3, that is past participle. Okay. And when we move ahead, we'll come to know now this is giving is also there, and this is V4, and that is present participle. Okay.
And last but not the least, if I say give, that is V5. So this is also present tense, okay? But this is singular. So please remember this. While doing any exercise, do not just say again and again tense, past participle, and present participle. Instead of that, we can say V1, that means present tense, V2, V3, V4, and V5. So why did I, mention this all? Just because when I'm talking about model auxiliary verbs, for example, if I say can, so with can, I will use V1. Okay. So you please remember this. Okay, when I'm talking about V1, that means I'm talking about the present tense that is also in that is in plural form. Okay. So when I'm talking about she, even though when I use simple present tense, I say she swims. Okay. If I write this in the present tense, I will say she swims. Okay. And we swim, as we are saying, that is we swim. We'll say this. But when this can happen only when I am using simple present tense. Okay. But or any tenses where I'm not using model auxiliary verb. But when I'm using model auxiliary verb, please remember I use always V1, that is present tense of the verb. Okay. At the same time, please remember one more thing, that model auxiliary verb cannot stand alone. If I use she can, what she can, we need to add the main verb here. Without the main verb, model auxiliary verbs cannot stand. Please make it very clear. We cannot say they can, they should, but what work you are saying? We need to add on that thing. Okay. So it is mandatory, it is imperative to add main verb along with the model auxiliary verb. Okay. So always remember it needs main verb. Okay. So how I will write? I will write model auxiliary verb, model auxiliary verb plus main verb. We cannot use or main verb also in which form? That is V1. Hope you understood till here. Let's sum up one more time that the model auxiliary verbs are also known as defective auxiliary verbs, where we have some loopholes or some shortcomings or some problem somewhere. We can say it is not perfectly all right. So we can say this defective auxiliary verb, because when we are taking the examples, we come to know we can use before a singular subject, before a plural subject. That means it doesn't discriminate between the singular subject and the plural subject. Okay. Now let's proceed with the second topic, and that is when we are talking about the usage of this. So how we will use, we should remember that model auxiliary verbs cannot stand alone. We need main verbs to give a complete sense. So always remember, we cannot use any other form of the verb except V1. Okay, and that V1 is what? Present tense, and that is also in plural. And whatever we have learned in connection to model auxiliary verbs are very important to learn, and that is the prerequisite. I call it prerequisite because
Without this, we cannot understand model auxiliary verbs well. So to make them understand better what how we can use can, it's interesting to say that many people they use can everywhere. That if we cannot make any sentences properly, we use it everywhere. And for our casual talk, I would say it is okay. But when you are coming to the platform of grammar, you need to be very cautious where to use and what to use. Okay, so let's know, and inshallah, from today onwards, we are going to use it in a proper manner. The most important thing, which while learning, I always see the rules of the grammar. Okay, what comes, examples and everything comes next to me. Okay, and again, I would say can comes with V1. That is the first form of the verb. Uh, Model auxiliary verbs cannot stand alone. Cannot. It requires main verbs to make a sense. Okay, this is the rule. Now let's see what is the example is all about, how it works and where it works. Can it is used for the ability, informal permission, and the possibility. If I'm talking about I can speak 4 languages, you know, if I'm talking about 4 languages, it doesn't mean that everything is stored in my brain and I'm just using that. No, while learning, I put all my effort. Cognitive development was also was a part of this learning. And apart from that, when I'm talking about this ability, so it requires my wisdom, my IQ level, and there are many things which was the ingredient of this learning. So this is what my ability is all about. It is not possible for everyone to learn 4 languages. Okay, so if someone is learning, so that means that person is putting his ability. At the same time, if I'm saying informal permission, so if I'm saying, can I use your book, please? So that means I'm not talking to my elders, to my teachers, or anyone whom I'm giving respect. This is something to like I'm uh, addressing to my peer or addressing to my colleagues or anyone. Okay, so if I'm saying can I use your book, that means that I'm very much familiar to that person and there is no barrier between us. Okay, and I'm very much frank towards to that person and I'm using informal permission, and that means in that case I can use can. Okay, so here we understood the thing that can be used for the ability, for the informal permission. Use these 3 model auxiliary verbs where we use V1 along with them. Okay. Now may, might, and must. These are very important, but let's make it little easier. How? May and might, they are interchangeable. We can use might and may in, there is no compulsion that we need to use might here and may here. We can use them. But there is a little bit difference. Inshallah, we can understand them better through the examples. And must, there is no choice. Must says there is no choice, not at all. You have to do this at any cost. Okay. So let's know them better with the examples, and inshallah we are going to learn them in the best way, inshallah. अब उसके बाद हम देखते हैं कि एग्जाम्पल्स इसके क्या है. परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड पोलाइट रिक्वेस्ट. ठीक है.
अब यहाँ पर क्या है, मे आई टेक अ फोटो। मे आई टेक अ फोटो में क्या मैं आपका फोटो ले सकता हूँ? यहाँ पर सिर्फ यस और नो है, सिर्फ इजाजत है। इट मे रेन टुमारो, ये पॉसिबिलिटी है, कल बारिश हो सकती है। मे आई कम इन, ये खास मैंने लिया है, खास बहुत आसान लगता है, लेकिन अक्सर टीचर इसको ओवरलुक करते हैं कि मतलब अगर कोई बच्चा मे कैन आई कम इन कहता है तो टीचर कहती है ठीक है आ जाइए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है कि अदब का जहाँ पर मुकाम होता है, और कहना चाहिए कि ये बहुत बाअदब होता है, मे की अगर बात की जाए तो जब हम अपने बड़ों से एड्रेस करते हैं तो हमें कैन नहीं लगाना है, उस वक्त हमें मे लगाना है। मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, ठीक है। लाइक दिस वी शुड से, वी शुड नॉट से कैन आई कम इन, नो, बिकॉज मैंने आपसे क्या कहा कि वो इनफॉर्मल परमिशन है। ओके, तो हम जब अपने अपने ही किसी, अगर अपने ही किसी दोस्त की बुक चाहिए, पेन चाहिए, तो कैन आई टेक दिस, वी कैन से। बट इफ आई वांट टू आस्क टू माय टीचर और टू एनी ऑफ माय एल्डर्स, so I will say, may I take your book please, ठीक है। तो in this way I can say। अब देखिए, might, I might see you tomorrow, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सर दर्द होते हैं, तो उस वक्त भी कहा जाता है कि ओके, बहुत बुलाया जाता है, या बहुत हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला हमें नहीं छोड़ेगा, और हमें उसको मतलब किसी तरह से बात को टालना है, तो उस वक्त भी हम कह सकते हैं आई माइट सी यू टुमारो। ओके, उसी तरह से ये भी होता है कि हम किसी काम में बहुत बिजी हैं, हमारा स्केड्यूल बहुत हैक्टिक है, सो इन दैट केस ऑल्सो आई कैन से आई माइट सी यू टुमारो। ओके, सो मतलब श्योर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। योर चाइल्ड माइट डू बेटर विद अ डिफरेंट टीचर, यानी आपका बच्चा बहुत बेहतर कर सकता है, मतलब जब उसे कोई अच्छा टीचर मिल जाए, कोई दूसरा विद अ डिफरेंट टीचर, कोई एक दूसरे टीचर से वो अच्छा सीख सकता है। देखिए, असल चीज हम हमेशा 100 बार कहते हैं लोगों को कि सीखा क्या जा रहा है, आप उस पर ध्यान दीजिए, टीचर कौन सा भी हो, कोई भी टीचर हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये चीजें बच्चों को अक्सर हम अपने घर में सिखाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम जानते हैं को, और जो द इन्फ्लुएंस ऑफ अ गुड टीचर कैन नेवर बी इरेज्ड। हम ये समझते हैं कि एक अच्छा टीचर जो है अपने आप में बहुत कीमती सरमाया होता है, बहुत ही प्रेशियस असेट होता है हमारे नेशन के लिए। और हो सकता है कि अगर कोई दूसरा टीचर आए तो बच्चा बेहतर सीख सके, ठीक है। तो यहाँ पर 100% नहीं कह सकते हम, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, डिस्टेंस है, क्योंकि हो सकता है कि टीचर जो पहले भी पढ़ा रही थी वो अच्छी टीचर हो, बच्चा ही पढ़ने वाला ना हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंट पॉसिबिलिटी है, रिमोट पॉसिबिलिटी वी कैन से दैट। यू माइट वांट टू टेक अ ब्रेक, मतलब कोई काफी देर से प्रोलॉन्ग, फॉर द लॉन्ग आवर्स इफ समवन इज working, then after that we can say you might you want to take a break, because since long you are working and you did not take rest, so better to take rest, you might want to take a break। if I didn't have to study I might go out, यानी कि अगर मुझे पढ़ना नहीं होता तो मैं बाहर गया होता। समझे आप? तो यहाँ पर हम एक तरह से पास्ट के अपने किसी एक्ट को भी बता रहे हैं कि हमने पास्ट में मतलब किस तरह से इसको हमने सोचा, तो अगर मैं पढ़ाई नहीं करता तो मैं बाहर गया होता, ठीक है। तो ये एक ऐसी पॉसिबिलिटीज है, ऐसी कंडीशन है। यहाँ पर जो लास्ट का जो सेंटेंस है यहाँ पर, तो इफ आ जाता है तो हमें पता है कि वो कंडीशन बताता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि हम हर जगह कैन नहीं लगा सकते, कुछ जगह पर हमें मे ही लगाना है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लेसेस है जहां पर हमें माइट का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा कि मे और माइट इंटरचेंजेबल है, हम दोनों का इस्तेमाल एक से दूसरी जगह पर कर सकते हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि हमारा मूड कैसा है, काम करने वाला जो वर्ब का मूड कैसा है, हाउ मच वी आर श्योर टुवर्ड्स अवर
टुवर्ड्स आवर वर्क, हम अपने काम के प्रति, हम अपने काम को लेकर कितने श्योर है, वही चीज तो दरअसल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बताती है। जब हम बहुत 100% श्योर होते हैं, तब हम मस्ट लगाते हैं। जैसे कि वी मस्ट ऑफर सोला, ओके, चाहे कुछ भी हालात हो, नमाज पढ़नी ही है हमें, किसी भी हालत में वो माफ नहीं है। वी मस्ट ड्रिंक वाटर, हमें पानी पीना ही है। अगर आप बोलेंगे कि 4 दिन तक मेरा दिल नहीं है पानी पीने का, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, उसकी जो रेमिफिकेशन होंगे वो डिजायरेबल तो बिल्कुल नहीं होंगे, है ना। तो ये चीज हमको याद रखना है कि जब भी हम कोई चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको प्रॉपर यूजेज हमारे हमें उसका पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यू मस्ट वर्क हार्ड। देखिए, काम की असल शर्त क्या है? हार्ड वर्क होना। मतलब हमें उसे कैसा काम करना है? हार्ड वर्क करना है। स्मार्ट वर्क को भी लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिए, आपको स्मार्ट वर्क जो है ना, आपके काम में जल्दी लाता है, ये बात सही है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग वे अगर जाना है, एक ड्यूरेबल रास्ता आपको चाहिए ना, तो आपको हार्ड वर्क करना ही है। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल अ पर्सन कैन हैव अ पैलेस without putting the hard work. Okay, that is not possible only. If I'm talking about hereafter, how long you will do a smart work? We need to burn our midnight oil. We need to work very hard to earn his rewards. Okay. To if we want to earn Jannah, in that case, we need to put every single to a big effort. Okay. We need to sacrifice everything for his cause. So hard work is a must. There is no compromise in this. Ruhan must stop smoking. स्मोकिंग के लिए कोई शर्त नहीं है आपके लिए कि अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो भी चलेगा। नो, इट इज नॉट परमिसिबल। ऑल पैसेंजर्स मस्ट वेयर सीट बेल्ट। देखिए, आप कितने ही अच्छे ड्राइवर क्यों ना हो, आप कितनी ही अच्छी ड्राइविंग क्यों ना करते हो, ये चीज आपको जहन में रखना है कि सीट बेल्ट इज अ मस्ट टू वेयर। सीट बेल्ट बहुत जरूरी है। कोई हादसा, कोई अनसर्टेनिटी आपको कॉल करके नहीं आने वाली है। ओके, या आपको प्री इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा। आपका डेस्टिनी जो है आपको पहले से पता नहीं है। तो वी नीड टू टेक प्रिकॉशंस एज वेल। आपको पता है ना तवक्कुल कब करना है हमें अपने। वी नीड टू टाई अवर कैमल, देन वी नीड टू पुट ट्रस्ट इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वी कैन नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट हिम। दिस इज द मेन रीजन। ओके, तो यहाँ पर ये मस्ट है, जरूरी है एकदम, बिकॉज इट इज द मैटर ऑफ योर लाइफ एंड डेथ। आई मस्ट टॉक टू यू अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट। अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं और उसके बारे में हम बात नहीं करते, तो इज इट पॉसिबल दैट कि वो uh, उसका कोई बिगिनिंग होगी या उसका कोई बेहतर एंड होगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो मस्ट ऐसा होता है वेर वी आर शोइंग अवर 100%, वेर वी आर शोइंग अवर 100% श्योरिटी, और हम उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए, विल और शाल, ये टॉपिक मुझे लगता है कि ये सारे स्लाइड में मुझे सबसे ज्यादा वक्त इसी में लगा, क्योंकि इसमें वो इतने सारे पॉइंट्स इसमें आते हैं। इसका कंटेंट विल और शाल का बहुत इन डेप्थ है। ओके, अब देखिए, यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये विल है और ये शाल है, और इनके साथ V1 आता है। दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग। बिफोर लर्निंग एनीथिंग एल्स, इट इज मैंडेटरी टू लर्न दिस रूल।
देखिए, किसी भी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, अगर कोई इंसान ग्रामर को उसके रूल्स के अकॉर्डिंग सीखता है, तो आई एम श्योर कि वो कभी कंफ्यूज नहीं हो सकता। ऐसा कोई सवाल नहीं हो सकता जो उसे ना आए। आप रोट लर्निंग पे फोकस मत कीजिए प्लीज। whenever you are going to learn grammar, so please make it very sure that you need to learn that particular topic's rule as well. आपके एड ऑन में ये चीज हमेशा होना चाहिए कि ये चीज मैं सीख रहा हूँ, तो इसका रूल क्या है। ओके, तो उसके रूल को भी ठीक तरह से सीखना बहुत जरूरी है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। देखिए, अब हम शाल को समझने की कोशिश करते हैं कि शाल किसके साथ इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन, आई और वी। क्या आई और वी दोनों भी एक ही तरह का काम करते हैं? नहीं। आई का इस्तेमाल हम अपने लिए करते हैं, मतलब सिंगुलर के लिए, ठीक है। और वी का इस्तेमाल हम हमारे साथ ही बहुत सारे लोग हैं, जैसे वी ऑल आर इंडियन, और इसी तरह से अलग अलग कंट्री से जो बिलोंग करते हैं, हम कह सकते हैं वी आर। अगर हम अपने सबके लिए कहना चाहें तो हम कह सकते हैं वी ऑल आर विमेन। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो वी का इस्तेमाल प्लूरल में होता है और आई का इस्तेमाल सिंगुलर में होता है। अब देखिए, आई शैल स्टडी टुमारो, यानी कि मैं कल पढ़ाई करूंगा, ठीक है। वी शैल मीट एट 7 o'clock, हम 7 बजे मिलने वाले हैं। ये एक नॉर्मल टॉक है। ओके, ये एक सिंपल फ्यूचर टेंस है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है द मैच शैल नॉट टेक प्लेस। देखिए, अगर कोई मैच ऑलरेडी डिसाइडेड थी और अगर वो नहीं हो रही है, तो या तो वेदर का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या ग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम है, या अचानक कोई अनसर्टन थिंग वहां पर हो गई है, जिसकी वजह से मैच को कैंसिल किया गया। ओके, ये सारी चीजें हमने एक नॉर्मल वे में कहा। उसी तरह से इट इज यूज्ड विद द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, यू, शी, ही, इट और दे, ठीक है। अब देखते हैं, ही विल प्ले टेबल टेनिस टुमारो, यानी कि वो टेबल टेनिस खेलेगा कल। और दे विल अपीयर फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। ओके, अगर मैं ये कहती हूँ कि ही विल प्ले टेबल टेनिस टुमारो, दे विल अपीयर फॉर द फाइनल एग्जाम। ओके, तो ये सारे सेंटेंसेस सिंपल फ्यूचर टेंस है। इसमें हमारे कोई भी इमोशन ऐड नहीं है। ओके, इसमें हमारे किसी भी तरह से कोई भी इमोशंस ऐड नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर अपने इमोशंस को ऐड नहीं करते हैं, तो ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है जिसको हमने कहा है, ठीक है। अब अगर हम फर्दर देखते हैं कि अगर हमने यहाँ पर इमोशन का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, क्या इमोशंस के ऐड हो जाने से इनके यूजेज में कोई प्रॉब्लम आती है क्या? क्या उनके प्रॉब्लम्स क्या उनका यूजेज बदल जाता है? आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर व्हेन व्हेन वी यूज विल एंड शैल, व्हेन द इमोशंस आर एडेड विद द फर्स्ट पर्सन। जब हम फर्स्ट पर्सन मतलब कौन, फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, ठीक है। तो व्हेन वी एड आवर इमोशंस विथ फर्स्ट पर्सन, वी यूज विल। तो मतलब जब हमारे इमोशंस ऐड हो जाते हैं, तो मैं आई शैल नहीं कहूंगी, मैं आई विल कहूंगी। मैं वी शैल नहीं कहूंगी, मैं वी विल कहूंगी, ठीक है। अब देखते हैं उसी तरह, वेर एज when the emotions are added with the second and with the third person, we use shall। इसका मतलब जब हम सेकेंड पर्सन के लिए ये कहते थे कि यू विल, मतलब फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में, जब हमारे इमोशंस एडेड नहीं थे, ठीक है। लेकिन जब हमने अपने इमोशंस को उसमें ऐड किया, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं यू शाल, शी शाल, ही शाल, ठीक है। इसका मतलब इमोशन
ऐड हो जाने के बाद ये केस बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। आई विल गेट एन ओ। ओ समझते हैं ना, आउटस्टैंडिंग के लिए हम अगर किसी को एग्जाम में ओ मिलता है, इसका मतलब वो स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग स्कोर करता है उसमें। ठीक है, तो आई गेट एन ओ ऑन दिस एग्जाम, आई प्रॉमिस। ठीक है, अब ये सेंटेंस को मैं फिर से पढ़ती हूँ, आप देखिए कहाँ पर हमें कुछ प्रॉब्लम लगता है। I'll get an O on this exam, I promise. ओके, यानी कि मुझे ये एग्जाम में ओ मिलेगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन हम इसमें इन दिस एग्जाम क्यों नहीं इस्तेमाल किए? हमने इसमें ऑन दिस एग्जाम क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि याद रखिए, जब हम ऑन दिस एग्जाम कहते हैं, इसका मतलब है कि हम ऐसा कोई एग्जाम है जिसको अभी प्रेजेंट में हम उसे अटेंड करने वाले हैं। जैसे कि अभी 1 आवर के बाद मेरा एग्जाम है, और मैं किसी से कह रही हूँ कि आई गेट एन ओ ऑन दिस एग्जाम, आई प्रॉमिस। ओके, सो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त हम इन दिस एग्जाम नहीं बोलेंगे। उस वक्त जब हम अभी अपियर करने वाले हैं प्रेजेंट में, at that moment I'll say I'll get an O on this exam, I promise। ठीक है, उसी तरह से we will not tolerate smoking inside the building। ओके, यहाँ पर एक वार्निंग है कि अगर कोई बिल्डिंग में स्मोकिंग को बहुत नापसंद किया जाता है, तो वहां पर वहां पर ये वार्निंग के टोन में कहा जा सकता है कि विल नॉट टॉलरेट स्मोकिंग इनसाइड द बिल्डिंग। ओके, तो ये चीज का ख्याल रखना है कि ये दोनों ही इमोशंस के साथ कहे गए हैं। कोई बंदा ऐसा ही नहीं कहेगा कि मैं ओ लेकर आऊंगा और उसके अंदर डिटर्मिनेशन ना हो। उसके अंदर डिटर्मिनेशन है कि वो ये कह रहा है कि मैं ओ ला सकता हूँ। उसी तरह सेकेंड वाला सेंटेंस वार्निंग है, मतलब कोई गुस्से से बोल रहा है, उसमें उसकी इमोशंस एडेड है। ठीक है, उसी तरह से शाल देखते हैं। यू शैल फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू गो आउट टू प्ले। अगर अम्मी बच्चे से ये कहती है कि जब तक होमवर्क ना कंप्लीट हो, आप बाहर खेलने नहीं जा सकते। ठीक है, यू शैल फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू गो आउट टू प्ले, मतलब बाहर जाने से पहले आपका ये कंप्लीट कर लेना है। तो ये अम्मी जो बोलेंगी, उसका कैसा होगा टोन? यू शैल फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू गो आउट टू प्ले। थोड़ा सा इंटोनेशन ऊपर होगा। ठीक है, थोड़ा सा गुस्से में कह रही है ये बात अम्मी, क्योंकि सिर्फ खेल जरूरी नहीं है, आपको पढ़ना भी है। ठीक है, उसी तरह से अब देखिए, मैंने एक डेलिबरेट वे में इसको लिया है कि द वेडिंग शैल नॉट टेक प्लेस। अब यहाँ पर ये मतलब इसमें इमोशंस कैसे आ गए? इससे पहले जब हमने सेंटेंस लिया था कि द मैच विल नॉट टेक प्लेस, तो वो सेंटेंस को हमने ये कहा कि वो तो एक नॉर्मल सा फ्यूचर टेंस है। इससे पहले जो हमने इस्तेमाल किया, उसमें हमने कहा द मैच शैल नॉट टेक प्लेस, और हम यहाँ पर कहते हैं कि द वेडिंग शैल नॉट टेक प्लेस। अब ये वाला सेंटेंस इमोशंस के साथ आता है और वो वाला सेंटेंस एक नॉर्मल है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि जब मैच कैंसिल होती है या मैच नहीं होती है, तो वेदर के खराबी की वजह से हो सकती है, या कुछ इंटरनल रीजन की वजह से हो सकती है जो सडन हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई ये कह रहा है कि द वेडिंग शैल नॉट टेक प्लेस, मतलब यहाँ पर एक वार्निंग दी जा रही है, समझाया जा रहा है कि शादी नहीं होगी, कोई इसे रोक रहा है, हो सकता है फादर हो सकता है कोई रिलेटिव, और आई वी आर नॉट इनटू दैट। ओके, लेकिन कोई तो रीजन है जिसको होने यहाँ पर सडन नहीं है। यहाँ पर एक डेलिबरेट एक्ट है कि जहां पर शादी को रोका जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर सडनली नहीं पता चल रहा है, कोई मौसम खराब नहीं हो गया यहाँ पर कोई इंसान का अपना डिसीजन है कि शादी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से हम उसको इमोशंस के साथ ही कहेंगे। ऑल एम्प्लॉयज shall wear safety gloves when handling hazardous chemicals। hazardous नहीं पढ़ना है इसको,
hazardous. Okay, all employees shall wear safety gloves when handling hazardous chemicals. Okay, अब हमको ये पता है कि अ, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके करने के वक्त ग्लव्स का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, और वो भी बहुत ऐसा समझ लीजिए कि इंसान को बहुत कॉशियस होने की जरूरत है कि ऑल एम्प्लॉयज शैल वेयर सेफ्टी ग्लव्स व्हेन हैंडलिंग हैजर्डस केमिकल्स। ओके, तो ये याद रखिए प्लीज। जब हम विल के बारे में कहते हैं तो हम बहुत श्योर होते हैं, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ कहते हैं। ठीक है, तो उस वक्त हमें इसको रिवर्स कर देना है। अच्छा, अगर हमें ऐसा नहीं है कि कोई चीज डिटर्मिनेशन के साथ आ रही है तो हम जो है उसी वक्त व्हील लगा सकते। अगर आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, मैं आपसे ये कहती हूँ कि अगर आपको शाल और व्हील का सही से इस्तेमाल नहीं आता तो आप हर जगह व्हील लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप हर जगह शाल नहीं लगा सकते, ये याद रखिए। आप हर जगह विल लगा सकते हैं, ओके, बट यू कैनॉट यूज शाल एवरीवेयर। ओके, क्योंकि हमने अभी देखा कि शाल जो है कहीं कहीं वार्निंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो यू कैनॉट अडॉप्ट दिस काइंड ऑफ टोन एवरीवेयर। ओके, सो प्लीज मेक इट श्योर कि जब हम एक नॉर्मल रिदम में रहते हैं तो आई और विल के साथ शाल लगता है। बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए हम विल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन जब उसमें हमारे इमोशन ऐड हो जाते हैं तो ये सिचुएशन, ये केस रिवर्स हो जाता है। रिवर्स ये हो जाता है कि शाल का इस्तेमाल हम सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये चीज को प्लीज अपने साथ बांध लीजिए और इसे अच्छे से याद रखिए। ठीक है, इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि विल और शाल का इस्तेमाल कैसे होता है, हम उसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि रिक्वेस्ट है, विल यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये हम कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर शाल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी तरह से अगर हम देखते हैं, अगर हम ऑफ़र के लिए अगर कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उस वक्त हम कहेंगे शैल आई गेट यू अ ड्रिंक। उसी तरह से सजेस्चन है, शैल वी हैव पिज़्ज़ा टुनाइट। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखना है कि अगर रिक्वेस्ट है तो हम विल की जगह शाल नहीं लगा सकते, और अगर ऑफ़र है तो शाल की जगह हम विल नहीं लगा सकते। इसे हमें याद रखना है। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द नेक्स्ट स्लाइड। ये इस प्रोग्राम का लास्ट पार्ट है। ठीक है, देखते हैं वुड और शुड। ये दोनों सबसे ज्यादा आसान है। ठीक है, आपको भी समझ में आएगा। इट इज रियली वेरी इजी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज दैट। वुड, इट इज यूज्ड फॉर पास्ट इवेंट्स, कंडीशन एंड अ पोलाइट रिक्वेस्ट। ओके, अब अगर हम इसको पास्ट किसी अपने इवेंट के बारे में बताते हैं, कोई कंडीशन है या पोलाइट ऑफर है, देखते हैं वो क्या है। इफ आई वर, इसको देखिए प्रोनाउंसिएशन में आई वर नहीं पढ़ना है। कुछ इस लोग इसको वेर पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको वर पढ़ते हैं। देखिए इसमें आर का साउंड नहीं है। व, इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ बोट। अगर मैं अमीर होती, रिच होती, तो मैं एक बोट खरीदती। ओके, अब देखिए यहाँ पर आई के साथ हम वॉज लगाते हैं, ठीक है, जनरली। लेकिन अगर वो विश हो, अगर उसमें हम किसी तरह से अपने किसी फ्यूचर डिजायर को हम
एक्सप्रेस करते हैं तो उस वक्त हम आई के साथ व लगाते हैं। इफ आई व रिच, और हमें पता है कि अगर ये शुरू में इफ आ जाता है तो जो दूसरा कनेक्टिंग सेंटेंस होता है, क्लॉज होता है, सॉरी नॉट सेंटेंस, इफ वी आर यूजिंग अनदर क्लॉज, वी, ये जो कॉमा है ना, ये मस्ट है। अगर कोई स्टूडेंट इसे सुन रहा है तो ये याद रखें कि अगर ये कॉमा आप नहीं लगाते तो हाफ मार्क्स आपका खुशी से चला जाएगा, बहुत ही आसानी से। Punctuation matters. Please remember this thing. Would you like to have a cup of tea? ये आपका पोलाइट ऑफर है। आप किसी को चाय देने के वक्त में विल नहीं लगा सकते, हाँ, ये याद रखिए। विल आप यस बोल सकते हैं, मतलब आप किसी को जब अगर ऑफर कर रहे हैं, आपको उसके लिए वुड ही लगाना है। ओके, अब देखिए, आई थॉट आई वुड अटेंड द लेक्चर देन आई कैंसल्ड। अब इसको आप किसी पास्ट इवेंट को बता रहे हैं कि मैंने सोचा था कि मैं लेक्चर को अटेंड करूं, लेकिन फिर मैंने कैंसिल कर दिया। ओके, तो यहाँ पर आप अपने किसी पास्ट इवेंट को अगर बताते हैं तो आप वुड तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको ये चीज याद रखनी है कि आपको V1 का ही इस्तेमाल करना है। even though you are expressing about your past, but you are not allowed to use third form, second form, or any other form of the verb except V1. Okay, so we use V1 only, no matter whether we use singular, whether we use plural, we need to use whenever we are using modal auxiliary verb, we need main verb in the first form only. Okay, please remember this. उसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं शुड के बारे में। इट इज यूज फॉर एडवाइस एंड रिकमेंडेशन। पहले मैं आपको बताऊं, अक्सर लोगों को ये समझ में नहीं आता है। अगर हम एडवाइस ऐसा वाला लिखते हैं तो ये एडवाइस से पहले कभी भी फॉर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसकी क्या वजह है? क्योंकि ये एडवाइस से पहले जो ये फॉर आया है, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद वर्ब नहीं आता है। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड हमेशा नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड होता है। नाउन प्रोनाउन तो आपको पता है। जेरेंड क्या है? जब कोई नाउन आईएनजी फॉर्म में होता है उसे हम जेरेंड कहते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा कि स्विमिंग इज द बेस्ट प्रैक्टिस, ओके, तो स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, अगर मैं ऐसे कहती हूँ तो यहाँ पर स्विमिंग जेरेंड है। ओके, हालांकि ये नाउन है लेकिन इसमें आईएनजी आ गया है इसलिए हम इसे जेरेंड कहते हैं। ओके, राइटिंग इज अ गुड हैबिट। ओके, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, अगर हम ऐसे कहते हैं कि रीडिंग इज अ गुड हैबिट, तो यहाँ पर रीडिंग में आईएनजी फॉर्म जो आ गया है, तो ये नाउन है, यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है, नाउन है, लेकिन उसको हम जेरेंड कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए कि ये वाला एडवाइस जो है, इसका मतलब होता है मशवरा करना। ओके, लेकिन ये वाले एडवाइस का मतलब होता है मशवरा, सिर्फ मशवरा। ठीक है, इसलिए हमें सीई ही लगाना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसे इग्नोर करते हैं और एडवांस इंग्लिश की तरफ प्रोसीड करते हैं। जबकि आपको पता है, अगर कोई इंसान, उसके कदम मजबूत है ना, तो वो कितनी भी ऊंचाई पर आसानी से चढ़ सकता है। ठीक है, तो हमें अपने आप को पोटेंट बनाना है, थोड़ा स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, इंशाल्लाह। आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इफ यू वांट टू लूज वेट, अगर यहाँ पर अगेन इफ आ गया है, कंडीशनल सेंटेंस है, तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि यहाँ का कॉमा हाफ मार्क्स आपको देने वाला है। ओके, डू नॉट मिस दिस कॉमा। इफ यू वांट टू लूज वेट, अगर आपको अपना वेट लूज कम करना है, यू शुड ईट हेल्दी फूड, आपको हेल्दी फूड खाने की जरूरत है। उसी तरह से ये आपको क्या है, रेकमेंडेशन है, रेकमेंड कर रहा है कोई कि अगर आपको वेट कम करना है तो आपको अच्छा खाना, हेल्दी खाना खाना पड़ेगा।
अब उसी तरह कोई आपको एडवाइस क्या दे रहा है कि वी शुड ईट वेजिटेबल्स, नॉट वेजिटेबल्स। हाँ, ये प्लीज याद रखिए, अच्छी तरह से याद रखिए कि इसमें इस्तेमाल होने वाला ई, इसका कोई साउंड नहीं है। ये बिल्कुल शोर नहीं करता, ये खामोश रहता है। ठीक है, तो हमें इसको याद रखना है कि वी शुड नॉट ईट वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ओके, तो ये चीज हमें याद रखना है कि शुड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी चीजों के लिए नहीं होता है, लेकिन हाँ मशवरे के लिए होता है और रिकमेंडेशन के लिए होता है। ओके, अब जैसे कि हम यहाँ पर ये कहते हैं कि इफ यू वांट टू लूज वेट यू शुड ईट हेल्दी फूड, वी शुड ईट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ओके, तो यहाँ पर आपका एडवाइस और रिकमेंडेशन दोनों कवर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक के हमने अ, सीखा। ठीक है, and I'm very thankful to you all to be very patient while learning, while understanding throughout the session. So a big thank you from my side. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.